Hello, good morning, students. Today we are studying this skill fact moving families. Why family move from one place to another? Why they shift? They leave their own home and they go one place to another to live their life. What are the reasons behind them? In this chapter, we will study this. In this chapter, we will study about this. Okay. See, read these situations carefully. There are many situations in which families they leave their houses and move one place to another. In this, it is given Sangeeta and Priya are best friends. See, these two girls are best friends. Okay, they study in the same class, but these days Sangeeta is very upset because Priya is going to shift with her family from Mumbai to Kolkata as her father has been transferred. See, means in this it is telling that Sangeeta and Priya are both our friends. They are very good friends. They are best friends. Okay, and they study in the same school in the same class. But these days, nowadays, what happen? People get transferred. No, so Sangeeta is very upset. Why she is upset? She is very sad. She is sad because her best friend Priya is going to shift with her family from Mumbai to Kolkata. Priya is going to leave the Mumbai and going to shift in Kolkata as her father has been transferred. उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है ना, उनके जॉब में उनको ट्रांसफ़र दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो एक जगह मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो रहे हैं. इस वजह से ये दोनों फ्रेंड्स जो है वो एब्सेंट हैं, क्योंकि अब वो दोनों फ्रेंड्स डिस्टेंस हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, है ना, इस वजह से. तो अब देखो, डू यू हैव अ फ्रेंड हु हैज़ शिफ्टेड टू अनदर प्लेस? हैव यू बीन एबल टू कीप इन टच विथ हिम और हर? So this you can write answer here only. क्या आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जो इस तरह से कहीं और जाके शिफ्ट हो गया है? क्या आप उनके साथ में टच पे हो या इस हो या नहीं, वो आप लोग को यहाँ पे बताना है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. तो एक रीज़न क्या हो गया कि लोग ट्रांसफ़र होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहते हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टोरी दिया हुआ है यहाँ पे. Biju lives with his mother in a slum in Delhi. They both do cleaning work in the buildings near the slum area. Biju also attend an evening school with other boys and girls. Biju's family and all other families living in the slum have been told to evacuate the place as a multi-level parking construction has to be started, though they have been provided another shelter far away. Biju is worried because he doesn't know if he will be able to find work at a new place or another school nearby. Have you ever been come across such a situation? How can children like Bizu be helped? Discuss. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिजू जो है वो अपनी मम्मी के साथ में एक स्लम एरिया में रहता है दिल्ली में. ठीक है, स्लम एरिया एक कॉलोनी होता है, एक बस्ती जैसा होता है जहाँ पे वो रहता है. ठीक है, वहाँ पे आसपास में वो लोग क्लीनिंग का वर्क करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में जाके. ठीक है, बिजू जो है वो शाम का क्लास अटेंड करता है, क्योंकि वो सुबह में काम करता है ना. वो अदर बॉयज़ और गर्ल्स के साथ में शाम इवनिंग क्लास अटेंड करता है. बिजू फैमिली and all other families living in the slum have been told to evacuate the place as a multi-level parking constructions has to be started. बट वहाँ पे जितने भी लोग, देखो इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है, उनको एक नोटिस दे दिया गया है कि आप लोगों को इस प्लेस को छोड़ करके कहीं और जाके शिफ्ट होना है, क्योंकि इस एरिया में इन सभी चीज़ों को तोड़कर यहाँ पे पार्किंग कंस्ट्रक्शंस बनाया जाएगा. ठीक है, तो इसके वजह से उन लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट होना है. तो ये एक एरिया है. तो अब बिजू जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे जहाँ पे भी हम लोग नए प्लेस में जाएंगे वहाँ पे उसको नया स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, और उसको उसी तरह से काम मिल पाएगा नहीं या नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से वो टेंशन में. तो क्या आपके साथ कभी ऐसा एक सिचुएशन हुआ है? हाउ कैन चिल्ड्रन लाइक बिजू बी हेल्प? तो इस तरह के बच्चों को किस तरह से हेल्प किया जा सकता है, कैसे हेल्प किया जा सकता है?
जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काम नहीं कराना चाहिए, है ना, वो इलीगल होता है, चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल। सो उनके पेरेंट्स को कहीं पे नौकरी दिया जा सकता है, उनको रहने के लिए जगह या हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कीम चलाए जाते हैं जिसके थ्रू उनको हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को अब सोच के इसमें लिखना है कि कैसे उनको हेल्प किया जा सकता है। नाउ देखो, अब दूसरा चीज़ देखो। Arvind lives in Sri Lanka and has cleared an exam for studying abroad. He was overjoyed when he learned that he has got admission in a college in India. He is happy that after finishing his studies, he will be get an opportunity to work there and might settle there permanently. अब देखो, ये जो बच्चा है अरविंद, ये श्रीलंका में रहता है, ठीक है, और वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, एग्ज़ाम फॉर स्टडिंग अब्रोड, वो बाहर पढ़ने के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है और ये पास हो गया एग्ज़ाम में। तो ही वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही लर्न दैट ही हैज़ गॉट एन एडमिशन इन अ कॉलेज इन इंडिया। अब ये श्रीलंका में रहता है, इसको इंडिया में कॉलेज मिल गया, वहाँ पे उसको एडमिशन मिल रहा है। तो ये बहुत खुश है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में उसको एक मौका मिलेगा कि वो इंडिया में ही सेटल हो जाए परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखो, हैव एनी ऑफ योर रिलेटिव फ्रेंड शिफ्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड सेटल्ड है। तो आपकी कोई ऐसा फ्रेंड है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं, तो वो आप लोग को यहाँ पे नोट करना है। देर आर मैनी रीजन्स वाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इधर टेम्पररीली और परमानेंटली। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में टेम्प्रोरी और परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। दे आर ईदर फोर्स टू लीव अ प्लेस और दे चूज़ टू मूव, या तो उनको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है या फिर वो ऐसा करने के लिए खुद से ही चूज़ करते हैं, ठीक है, कि वो खुशी से जाते हैं। तो दिस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस पीपल और फैमिलीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो जब कोई भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या इस तरह से मूव करते हैं, कहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। पीपल माइग्रेट फॉर वेरियस रीजंस सच एज नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स, earthquakes, volcanic eruption. They also move due to lack of water, food, hygienic conditions, jobs and safety in a region. Based on type of movement, migration is classified into two categories. अब देखो, जो माइग्रेशन है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट होने का, ये कई रीजंस के थ्रू होता है। या तो ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर उनको ज़मीन खाली करने बोल दिया जाता है, या फिर वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं जैसे अर्थक्वेक, फ्लड एरिया, तो लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारे लाइफ के डैमेजेस होते हैं, प्रॉपर्टी डैमेजेस होते हैं। तो इनकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं। तो इनको इस जो शिफ्टिंग ऑफ पीपल, इनको दो तरह से माइग्रेशन को क्लासिफाइड किया गया है। एक है विद इन ओन्स कंट्री, मतलब जिस कंट्री में वो रहते हैं उसी कंट्री में या तो शिफ्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही जैसे छत्तीसगढ़ से MP में शिफ्ट हो जाना है, छत्तीसगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो जाना, है ना। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होना अपने ही कंट्री में, वो विद इन वंस कंट्री कहलाता है। और जो आउटसाइड वंस कंट्री होता है, जैसे श्रीलंका से इंडिया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से साउथ अफ्रीका, इस तरह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब शिफ्ट होते हैं तो उसको आउटसाइड वंस कंट्री बोलते हैं। देखो, इन सच माइग्रेशन पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस to cities within the country or from one city to another city due to the changes in jobs for permanent or temporary settlement outside one country. In such migrations, people move from one country to another for permanent or temporary settlement. ये जो शिफ्टिंग होता है या तो टेम्प्रेरी होता है या परमानेंटली होता है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट इफ देयर हैज़ बीन एनी फोर्स्ड माइग्रेशन इन योर लोकेलिटी, gather information on where those people have shifted and whether they have found it similar living conditions there. तो इसमें बोल रहा है कि आप लोग ऐसा यहाँ पे सर्च करो कि क्या लोग यहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती यहाँ से फोर्सफुली माइग्रेट किया गया है आपके लोकेशन में, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग को नोट करना है, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो भी आपको यहाँ पे लिखना है कि नो इट हैज़ नॉट बीन डन इन आवर लोकेलिटी, ओके। अब आप लोग का जो असाइनमेंट होगा, वो असाइनमेंट इस जो स्किल फैक्ट है इसके अंदर से मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपको दूंगी, जिसके आंसर्स आप लोग को इसके अंदर से ढूंढ कर लिखना है, ओके। थैंक यू।